Namaste ji, welcome to our documentary. Myself Shubham Sharma, and we are from Electrical and Electronics Department from Riyadh Bhara University. And our team name is Nature Warriors. And my role in the team is to do digital marketing and editing related. I am Sania, student of electrical engineering. So my role in this project is to finding different places for campaign. I am Mehak, pursuing BTech in electrical engineering. My role in this project is for making poster and spreading awareness. Earlier, our team was of 4 members, but due to some health issues, Ranjana is not available with us. And her role in the team was to do all the social media This is an inter-university project. The name of this project is Creative Velo, organized by One Gen. So कैटेगरीज है, कैटेगरी A, B and C. इसमें कैटेगरी A और C का काम इलेक्ट्रिकल रिक्शा प्रिपेयर करना है और उसके रिलेटेड अवेयरनेस Our team category is category B, and our team agenda is for campaigning and spreading awareness to the peoples. Before we select the topics, we went to the environment and surrounding that we see that people were facing many problems. Then we select the topics that gender equality, quality education and clean water and sanitation. So, before choosing the topics, we did a lot of research and visited the peoples. And we noticed that the female or the women of India didn't get the proper as compared to the male population of India. So that's why we choose gender equality. I also noticed that the education is the only possible way that can lead a happy life and bring a change in our life. So that's why we choose quality education. ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट हमने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करी, बट जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कैटेगरीज A और C के पास फिज़िकली दिखाने के लिए रिक्शा था, बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था. हमें लोगों के साथ वर्बली कम्युनिकेट करना था. सो हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया और कैसे उनके छोटे छोटे स्टेप्स फ्यूचर में एक बिग चेंज ला सकते हैं. Initially, we started our campaigning from our own class. Then we covered our own department, and then we moved to our college. And then we covered the whole university within the gap of a week. There were some mistakes that we made while campaigning. So I want to thank our HOD, Sonal Sood ma'am, for correcting us and supporting us throughout the whole journey. यूनिवर्सिटी में थे, हमारे लिए एक कंफर्ट जोन था. जैसे फैकल्टी मेंबर्स, एचओडी मैम एंड डीन सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया. और यूनिवर्सिटी कवर करने के बाद हम रायत बहारा इंटरनेशनल स्कूल भी हमने कवर किया. बाहर निकले, हमें बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क लगे. जैसे हमारे टीचर्स, हमारे एचओडी मैम हमारे साथ नहीं थे. यूनिवर्सिटी से बाहर नियर बाय प्लेसेस में हमने कवर किए, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस ने भी हमें कैंपेनिंग में बहुत सपोर्ट किया. We started campaigning from Kharad bus stand, Sector 43 bus stand, Sector 17 bus stand, Civil Hospital Kharad, SD College, PU Sociology Department and also the Polytechnic of Ropar. As during the campaigning, Diwali vacations come in between. So all the team members went back to their hometowns, like I am from Mandi, Mehak from Unna, Ranjana from Kangra and Shubham from Hamirpur. So we did not break the flow of our campaigning. We conduct the Zoom meeting at team level, where we did discussions and decide to start campaigning in our hometowns itself. All the team members worked very hard during the Diwali vacations to spread awareness among the peoples. After Diwali vacations, unfortunately due to some serious health issues, Ranjana was hospitalized in Kharad Civil Hospital. While we were in the hospital, it was difficult us to do campaigning. That's why we made social media handles like Facebook, Insta, YouTube, LinkedIn. But keeping our problem aside and work towards bringing a big change in society, we started our campaigning from hospital itself. We spread awareness among people regarding proper uses of dustbins and avoid touching your eyes, nose and mouth. हमने also. अपने कॉलेज में रैली भी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें हमने
जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन टॉपिक्स पे अवेयरनेस स्प्रेड करी और जिसमें हमें एचओडी मैम, डीन सर और फैकल्टी मेंबर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया ताकि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक था क्वालिटी एजुकेशन। इसमें हमने रैली ऑर्गेनाइज की जहां हमने सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत और उसकी अहमियत के बारे में जागरूक किया। हमने पोस्टर्स बनाए और स्लोगन्स गाए जैसे एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। टीचर्स ने हमें इसमें सपोर्ट किया। उन्होंने हमें समझाया कि किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का हक है और कैसे इससे उनकी ज़िंदगी सुधर सकती है। दूसरा टॉपिक था जेंडर इक्वालिटी। इसमें हमने स्कूल के बाहर रैली की जिसमें हमें जेंडर इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस को समझाया। हमने स्लोगन्स गाए जैसे इक्वल राइट्स फॉर ऑल। टीचर्स ने इस कैंपेनिंग में हमें मदद की। उन्होंने हमें जेंडर इश्यूज़ पर रिसर्च करने और समझाने में सपोर्ट किया जिससे हमारी रैली ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही। तीसरा टॉपिक था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें हमने अवेयरनेस रैली की जिसमें हमने क्लीन वाटर और सैनिटेशन की ज़रूरत के बारे में लोगों को जागरूक किया। इन रैलीज़ के ज़रिए हमने अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट किया और टीचर्स का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहे जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे टीम मेंबर शुभम शर्मा ने ब्लड भी डोनेट किया हिमाचल वेलफेयर एनजीओ के द्वारा। शुभम ने अपना ब्लड डोनेट किया जो कि एक बहुत बड़ा और नोबल कॉज है। ब्लड डोनेशन से हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं और ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ जब हमें ये समझ आया कि ब्लड डोनेशन में अधिकांश मेल डोनर्स ही होते हैं। इसका एक मकसद था कि हम सिर्फ खून ही नहीं दे रहे हैं बल्कि जेंडर इक्वालिटी के मामले पर भी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। मेल डोनर्स ने अपने खून के साथ साथ अपने विचार और समर्थन से ये दिखाया कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट के दौरान मेल डोनर्स ने समझाया कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि हर व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल उन्हें बराबर के मौके मिलने चाहिए। उन्होंने ब्लड डोनेशन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये बताया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल वेलफेयर एनजीओ एंड हिमाचल लाइफलाइन एनजीओ ने हमारी कैंपेनिंग को सपोर्ट करने का फैसला किया। ये एनजीओ हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं और उन्होंने हमारी ब्लड डोनेशन कैंपेन को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करने का काम किया। उन्होंने हमारी कैंपेनिंग वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जिससे हमारा संदेश और लोगों तक पहुंच रहा था। हमारी टीम नेचर वॉरियर्स ने मिलकर दोनों एनजीओज के साथ प्लांट्स की सैपलिंग की। ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम है क्योंकि हमें अपने वातावरण को सुरक्षित रखना है और नए पौधों को उगाना है। प्लांट्स की सैपलिंग के ज़रिए हम ये जांच रहे हैं कि कौन से पौधों को बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है और किस प्रकार से हमें अपने पर्यावरण को सुधारना है। इसके साथ ही हमने ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी बांटा। हमने सोचा कि सिर्फ प्रकृति की रक्षा करना ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसलिए हमने खाना तैयार करवा के उन लोगों तक पहुंचाया जो इस वक्त मदद की ज़रूरत में हैं। इस प्रयास से न सिर्फ हमने उनकी भूख मिटाई बल्कि उन्हें ये भी दिखाया कि हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। हर सैपलिंग एक नई जिंदगी का प्रतीक है। ये सिर्फ
पौधों को नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुधारने का काम करता है। ये सैपलिंग हमारे लिए एक पौड़ी नहीं बल्कि एक आशा है। इन्हें लगाने से हमारे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। हाँ, और ये हमें प्रकृति से जोड़ने का भी मौका देते हैं। जब हम इन्हें लगाते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। नेचर वॉरियर की ये छोटी सी कोशिश एक बड़ा परिवर्तन ला रही है। हम सिर्फ पौधों को नहीं बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे रहे हैं। ये सब हमारे साथियों की मेहनत का नतीजा है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तब कुछ भी मुमकिन है। आखिर में हम कहना चाहते हैं कि हर छोटी मदद का अपना महत्व है। जब हमने कैंपेनिंग के लिए अलग अलग प्लेसेस पे विजिट किया तो कुछ लोग हमारी बातों से सेटिस्फाई भी थे और कुछ लोगों को हमारी बात फ्रॉड भी लग रही थी। आप भी अपने हिस्से का योगदान दे सकते हैं। जैसे जैसे हम कैंपेनिंग करते गए तो लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया और अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन भी दिया। Throughout the project, it increased communication skills and built up my confidence. And this is my first experience. It builds my leadership quality and managing the time. आपको एक बात बताऊं, जैसे हम रोज कैंपेनिंग करते थे तो हमारे डेली के 10 से 20,000 तक हमारे स्टेप्स बनते थे जो हमारे डेली हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल थे। So it was not my first experience for campaigning. I have done campaigning in my school time, but it was a different experience as the audience here was very wide. And while interacting the people, visiting their houses and the community all, I experienced that how privileged we are. We should be thankful to the God for having a beautiful life. बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मुझ में बहुत सा पेशेंस आया। साथ ही साथ मैंने ये भी सीखा कि प्रॉब्लम को किस वे में हैंडल करना है। Firstly, I would like to thank our parents, faculty members, HOD ma'am and also our Dean sir who support us throughout this whole journey. We are glad that we got this great opportunity from the One Gen Creative Allo. It helped us in team and individual level growth. From the bottom of my heart, I would like to thank each and everybody who was involved in this whole journey. And I am also thankful for every person for making this project successful. Thank you, Creative Allo. नमस्ते जी करते हैं। ऑडियो तो मैं म्यूट कर दूंगा ये। नमस्ते जी, क्या आप एक बात बताऊं? लैंड रुक गया। ये परेशान हो गया भाई, ये बंदा परेशान हो गया। हमारी एक फनी सा कंटेंट है, कब से बोल रहे हो कि 1 घंटा वो एक्सप्रेशन दे दे, आधा घंटा सिर्फ 30 मिनट की 30 सेकंड। और अरे इन्ने बजरी हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो अब करेंगे ना नमस्ते पर एक्शन नमस्ते जी। उसे ऐसे करेंगे, नमस्ते जी और कुछ नहीं करेंगे इसके बाद। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर न्यू। अच्छा जी, नमस्ते सब ने तुमने एक साथ मत बोलो भाई। 2 3 नमस्ते जी, वेलकम टू आवर डॉक्यूमेंट्री। अब हम यहाँ पे बोलेंगे नमस्ते जी। चलो 1 2 3 स्टार्ट। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर डॉक्यूमेंट्री। ऐसे नहीं करने थे हाथ, जैसे सिर्फ नमस्ते जी है ना तो हाथ नीचे करेंगे सिर्फ। हाँ, मैंने कर दिया। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर डॉक्यूमेंट। चल स्टार्ट। हेलो हाय लुक एट सुन भाई
हाँ क्रिएटिव वैल्यू जर्नी हेलो हमारे कैमरा मैन बिहाइंड द सीन एक्चुअली हो रही है यहाँ पे रूम दिखा दो ताला लगा हुआ है ये हमसे रू हाँ जी डन डन है फिर So successfully we have made shooted our documentary. Now the main hectic. इसमें टीचर्स का कर रहे हैं हम डीन का कर डीन का एचओडी मैम फैकल्टी मेंबर ये हो गया ठीक है और क्या बोलते हैं हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें बहुत चैलेंजिंग टास्क 1 2 3 स्टार्ट सो हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया कि कैसे उनके छोटे छोटे स्टेप don't do that step कुछ नहीं हुआ हाँ कौन देख रहा है ओके सो हमने ये लो वेलकम एक लाफ योगा करते हैं छोड़ो फिर वो तो बनती रहेगी वो शूट हो रहा है वो सारा बिहाइंड द सीन में जाएगी क्लिप भी ठीक है ये थोड़ी सी क्लिप भेज देना ताकि मैं हंसते रहूं ओके स्टेप 2 बिहाइंड द सीन भी ओ यार जो बिहाइंड द सीन उसमें से निकलते हैं जो मेन क्लिप होती है ऐसे बैठे हो निकालो बिहाइंड द सीन जो मेन क्लिप होती है उसमें कैसे निकलेंगे उसी में से निकलते हैं बिहाइंड द सीन बिहाइंड द सीन मतलब तुम उठपटांग हरकतें कर रहे हो वही है तो वो जो मेन क्लिप में ऐड किया हुआ है कितने करने स्टार्ट आपको एक बात बताओ जैसे हम रोज ही रुक 2 मिनट यार मैंने चला ये होती है एक्सप्रेशन मेरे को यही बात आ